उतना में आप सबको जैमसी की आज खुदा ने फिर एक अवसर दिया है कि मैं उसकी महिमा के लिए कुछ शब्द आपके साथ शेयर करूं। The things I'm going to share with you in a few minutes वो है बुक ऑफ जेनेसिस की किताब से और 26 अध्याय जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं उसका 4-5 जो आयतें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको इससे आशीष पाइएगा। वचन में लिखा है, I will multiply your offspring as the stars of heaven and will give you your offsprings all this land, and in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge and my commandments, my statutes and my law. हिंदी में ऐसा है, मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। खुदावंत अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। मैं अजीजों, there is certain things that we need to do to be blessed. हमारी अपनी बातें अगर हम अपनी समझ से या अपनी सामर्थ्य या अपने बल से कुछ करना चाहें तो certainly we cannot do anything. But the thing is here that there are certain things that you can do to be blessed. Because our forefather has done it, and the people in our age are doing it, and the people after our age will be do it. So it is better for us to do it now. There's a certain things will happen when you do that things. Number one, you will be blessed at the present time, and in the future your offspring will be blessed. So being blessed by God or hearing the word directly from God, what you got to do? That is the few things I'm going to share with you. So God told to Isaac that I am going to bless you. अगर आप तीसरी आयत में देखें तो उसमें लिखा है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा
और ये सब देश मैं तुझको दूंगा और तेरे वंश को दूंगा, और जो शब्द मैं तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा. Number one is that you have to have attentive ear to hear from God. अब देखिए, खुदावंद खुदा ने अब्राहम से बातें की. खुदावंद खुदा अब आइजक से बातें कर रहा है, और आइजक को जैसे अब्राहम से प्रॉमिस किया था वैसे ही प्रॉमिस आइजक को भी दे रहा है. He said to Isaac, I will do everything what I have told to your father. For that shows that God does not change. God does not change. He's promise-keeping God. Whatever he say, he do it. So, what we need to do, number one, in verse 5, Abraham obeyed my voice. Why God bless Abraham? Number one, that he obey his voice. If we want to be blessed by God, doesn't matter where we are, doesn't matter what we do for living, but one thing is that we need to be faithful to our living God and obey all his statutes. कहता कि अब्राहम ने मेरी बात को माना और जो मैंने उसे सौंपा था. Whatever God gives you charge, to be honest with that. जो कुछ मैंने उसको सौंपा था और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का उसने पालन किया. Whatever God gives you in this life, to be faithful to God. Doesn't matter is small, doesn't matter is big. But the Bible says, if you are faithful in the small things, he will put you charge in the big things. Again, certain things we need to do while we are on this earth to be blessed. Number one is to obey God, to have sensitive ear to listen God. Unless you don't listen God, you will not obey God. You have to have to listening ear. Second thing, he said that whatever he charged you, Abraham obeyed. That we need to obey God as Abraham, as Isaac did. Then he said that he obeyed my commandments. Let me tell you one thing. That time Abraham encounter with God, we do not have the 10 commandments. Okay, now you may think, then what Abraham was obey? God was saying कि मेरे commandments को उसने obey किया. कौन से commandments? My dear friends, खुदा ने उसको कहा था कि तू इस देश से चला जा, और बिना किसी क्वेश्चन से खुदा की आवाज को उसने सुना और ओबे किया. फिर खुदा ने उसको कहा था कि तो अपने बेटे को मेरे लिए सैक्रिफाइस कर. अब्राहम ने बिना किसी क्वेश्चन से उसको सैक्रिफाइस किया, करने के लिए वो चला गया. सो दैट देयर सो मेनी अदर थिंग्स गॉड टॉक टू अब्राहम. So Abraham obeyed his commandment and his statutes, and कहता है कि उसने उसकी व्यवस्था का पालन किया. My dear friends, you want to be blessed by God? आप
परमेश्वर के द्वारा आशीष पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको अभी कोई रास्ता दिखाई ना देता हो सकता है कि आप जिस भी चीज को हाथ डालते हैं उसमें आप सक्सेस ना होते हो सकता है कि शैतान आपकी आशीष से खुश ना हो सकता है कि शैतान ने आपकी आशीष को रोक रखा हो। इट इज पॉसिबल। लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हेन गॉड इज ऑन आवर साइड, जब परमेश्वर आपकी तरफ है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी आशीष को रोक नहीं सकती है। आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। तो ये जो बातें थी ये मैंने आपके सामने रखनी थी। कहता कि तू इसी देश में रह, ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो कसम मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसको मैं पूरा करूंगा। मीनिंग God is giving you the assurity that whatever He placed in your life, He will do it. जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए आपके जीवन में रखा है, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। Doesn't matter, it may take time. It depends on our sincerity, our faithfulness toward God. He will do it. तो आज की ने बताओ क्या किया? अब खुदा के बात को सुना और एग्जैक्टली he did what God told him to do. And Isaac, according to the word of God, he keep growing. Amen. अगर आप आगे जाकर देखें तो जहां वो रहता था, अभी मिल्क जो फिलिस्तीनियों का राजा था, वो चलकर उसके पास आता है, कहता है कि भाई तू हमारे से चला जा, तू हमारे से ज्यादा ताकतवान हो गया है, तू हमारे से ज्यादा धनी हो गया है, तू हमारे से चला जा। और जब वहां से चला गया, थोड़ी दूर जाकर उसने वहां डेरे लगाए, तो ये अबीमेलेक अपने साथी के साथ, अपने मंत्रियों के साथ फिर उसके पास आता है। फिर उसको कहता है कि भैया हमने तो तेरे से भलाई की थी, अब तू बड़ा हो गया है, अब तू धनवान हो गया है, तो कृपा करके हमारे से भी तू भलाई करना। माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन गॉड ब्लेस यू, ऑल योर एनिमीज विल बो डाउन बिफोर यू। जब परमेश्वर आपको आशीष देगा, या परमेश्वर आपकी तरफ होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका सामना नहीं कर पाएगी। अभी मैं सुन रहा था, वो अमित शाह, इंडिया का जो मंत्री है कोई, वो आया पंजाब में, वहां कह रहा था टूटी सी पग उसने पहनी हुई थी, पगड़ी, और वो आकर उसको कह रहा था लोगों को कि अगर हमारी सरकार बनाएंगे तो हम धर्म परिवर्तन का जो कानून लेकर आएंगे। भाई ले आ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसीही अपना काम करेंगे, मसीही अपना काम करेंगे। लुक एट इन पाकिस्तान में भी ये कानून है। लाखों हजारों लोग अभी भी क्रिश्चियन बन रहे हैं। जिसको खुदा छू लेगा उसको अमित शाह नहीं रोक पाएगा। डोंट स्केयर। वन थिंग आई कैन प्रोफेसाई राइट नाउ, कि इनकी सरकार आने वाली नहीं है, इनकी सरकार आने वाली नहीं है। डोंट वरी अबाउट इट। My God, friends, I don't want to go into the politics, but I'm telling you that God, to whom God raised, nobody can pull down. Thank you and God bless you all. आइए हम दुआ करें। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू भला है, तेरी रहमतें अवधि हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी के तेरे लोगों के लिए जिनको तूने आज आशीष किया है अपने वचनों के द्वारा, होंगे प्रभु जी के इससे ही इनको बहुत तरह की आशीष दे।
आगे बढ़े, तेरे नाम को ऊंचा करे और तेरे नाम से पिता परमेश्वर आगे बढ़ते चले जाए। अगर कोई बीमार है, परेशान है, चिंता में है, की बीमारी परेशानी चिंता को दूर करें। खास करके प्रार्थना करता हूँ तेरे उन बहन भाइयों के लिए जो लोग जी अपने संदेशा भेजते हैं कि उनके बच्चे गलत रास्तों पर हैं, वो खुद गलत रास्तों पर हैं, वो अपना जीवन तुझे देना चाहते हैं। पर ये विनती करता हूँ कि उनको छू ले और उनको कंप्लीट तौर पर शिफा दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर तू आशीष देना चाहता है। मैं प्रभु जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन लोगों के जीवन में तू काम कर रहा है, जिनको अपनी आशीष दे रहा है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ शशि के लिए, शशि को तू छू ले प्रभु जी, उसको कंप्लीट तौर पर शिफा दे प्रभु। वो तेरी बच्ची है, तेरा भय मानती है और उसने प्रभु जी तेरे वचन के मुताबिक ये मैसेज भेजा है कि उसके लिए प्रार्थना की जाए। वचन में लिखा है कि विश्वासी योग्य प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु जी अपने बच्ची को छू ले। तेरा धन्यवाद करता हूँ पास्टर कश्मीर के लिए, इसको तूने छुआ है, उसको कंप्लीट तौर पर शिफा दे रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। और भी बहुत सारे हमारी कलीसियों में लोग हैं जो पिता परमेश्वर बीमार हैं, उनको छू ले पिता परमेश्वर, कंप्लीट तौर पर शिफा दे। मेन सबसे बड़ी बात पिता परमेश्वर के जो स्पिरिचुअली बीमार हैं उनको छू ले प्रभु जी, स्पिरिचुअली लोगों को हील कर प्रभु जी। आत्मिक तौर पर लोग आगे बढ़े पिता परमेश्वर, आत्मिक अंधापन जो लोगों का है वो दूर कर पिता परमेश्वर। लोग आत्मिक चीजों को देखें, आत्मिक चीजों की ओर बढ़े, जिससे प्रभु जी तेरा राज्य बढ़ता चला जाए। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।